हेलो। Yes, ma'am. हेलो। हेलो गर्ल्स, मेरी वॉइस आ रही है बेटा? Yes, ma'am. ओके, तो हम पहले ए से शुरुआत करते हैं। आरती इंगले, आप डायग्नोज शुरू करो बेटा अपना। आपको नाम बताना है, उनका डाइटरी असेसमेंट बताना है। Yes, ma'am. Just give me 5 minutes. ओके। ओके, आरती को टाइम है, तब तक क्या आयशा खान आप दे सकते हो? Yes, ma'am. ओके, स्टार्ट करो। आपको पेशेंट का नाम बताना है, उसकी एज बताना है, उसकी हाइट बताना है, देन डायग्नोस आपने क्या क्या किया है वो बताना है। Yes, ma'am. हम्म, Good afternoon, ma'am. Ma'am, patient name was Payal Arvind Dongre. Her age was 20 years and she was 5.4 feet and 58 kg. According to her history, her BMI BMI is 22.65 kg per meter square and comes under normal category. Ma'am, her energy requirement for per day is 1740 kilocalorie, and her protein requirement for per day is 55 grams, and fat is around 40 grams per day, and carbohydrate intake must be around 290 grams per day. Ma'am, as she Okay. comes under the normal category, हम्म, ma'am, she was supposed to eat chicken in usual time, so I had suggested along chicken she have eat also in her daily diet. And as she was saying that she just do running, she can do regular exercise and start yoga. And as okay. she's as she's just having 3 meals a day, she can start having 5 to 6 short meals per day. And ma'am, she can include in her diet dry fruits as they are good in proteins, calcium and potassium.
as ma'am she can Okay. include paneer, ghee, butter in her diet. And in early morning she can have she can drink warm water, and she must avoid junk food and bakery products. And I had suggested ma'am drink lots of water throughout the day. And as she was drinking milk, so she can drink milk along with dry fruit powder and turmeric, as it is very good in antioxidant. And ma'am she must eat more fruits. Ma'am, should I say the diet plan? Like, No, no, it's okay. आप orally बता सकते हो बेटा. okay, ma'am. Ma'am, in the early morning, she can have tea or warm water. And in breakfast, she can have boiled egg or poha or upma or veg sandwich and ghee paratha with omelette. Ma'am, in mid morning, she can have any fruit such as apple, banana, mango, etc. And in lunch, ma'am, she can have sabzi, like more like green leafy vegetables and green vegetables. Along with that, roti, dal, rice, and she can have some little achar. Ma'am, in snacks, she can have salad plate which include cucumber, tomato, and she can have dry fruits at the time of snacks like almond 3 or 4, and cashew nuts, raisins, and or she can have popcorn at the time of snacks. And in dinner, she can have chicken gravy, meat gravy, and rice, roti. Along with, she can have some salads such as cucumber, tomato, onion. And in the bedtime, she can drink milk with turmeric or dry fruit powder. Okay. Yes, ma'am, done. Okay. Next, Ashwarya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, मैम हिंदी में स्टार्ट कर सकते हैं ना? हाँ, language doesn't Okay. matter. ओके, थैंक यू मैम. तो मेरे जो क्लाइंट थे उनका नाम था पायल डोंगरे. उनके एज 20 थी, हाइट 5.54 मींस 162.5 सेंटीमीटर, वेट उनका 58 केजी था. सो उनकी जो आइडियल बॉडी वेट है वो 57.5 केजीज आता है. बीएमआई उनका नॉर्मल आता है मींस 22.13 केजी पर मीटर स्क्वायर उनका आता है, तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है. उनको एनर्जी 1740 किलो कैलोरी पर डे हम प्रोवाइड किया जा रहा है. देन प्रोटीन 230 कैलोरीज और 57.5 ग्राम पर डे के हिसाब से दिए. देन फैट जो है 20.68% के हिसाब से हमने दिया है. कार्बोहाइड्रेट टोटल ग्राम के हिसाब से 287.5 ग्राम आता है. सो जब हमने डायग्नोस किया तो जब बताया उन्होंने कि वो अवॉइड करती है जंक फूड वगैरह सब अवॉइड करती है, तो और रेगुलर पैटर्न उनका मील पैटर्न था. सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस उनके जो डाइट प्लान था उनके चेंजेस किए. लाइक अर्ली मॉर्निंग में वो वार्म वाटर ले सकती है लेमन और हनी के साथ, या फिर चिया सीड्स के साथ ले सकती है, वो काफी अच्छा होता है इसके लिए. देन ब्रेकफास्ट में जो रेगुलर ले रही थी वो पोहा और उपमा, वो सब कुछ नॉर्मली चल रहा था. बस एडेड मिड मॉर्निंग में बटर मिल्क दिया, लो फैट बटर मिल्क दिया क्योंकि वाटर इनटेक हम ज्यादा कर रहे थे, और फ्रूट्स दिया हुआ है. अदरवाइज फ्रूट्स ऑप्शन में है. लंच में उनको चपाती जो नॉर्मल था, चपाती सब्जी राइस दाल, बस सैलेड को ऐड किया हुआ है, टोमेटो कुकुम्बर जो भी सैलेड में वो लेना पसंद करेंगी. देन इवनिंग में टी या फिर कॉफी या वेज सैंडविच ले सकते हैं, बट वेज सैंडविच में भी ब्राउन ब्रेड यूज करने को कहा है. डिनर में चपाती सब्जी जो नॉर्मल है वो, वाटर इनटेक ज्यादा करना था इसलिए बटर मिल्क दे रहे, बट लो फैट वाला बटर मिल्क. देन बेड टाइम में वार्म मिल्क ही बोला था उन्होंने, सो हमने वार्म मिल्क में स्किम मिल्क ऐड किया है. टर्मरिक या फिर सिनेमन या हनी के साथ वो ले सकते हैं. दैट्स इट मैम. Okay. Okay. थैंक यू. Then RP. यस मैम. कैन आई स्टार्ट मैम? Yes, yes. Start करो. सो मैम गुड आफ्टरनून. मैम जो मेरी क्लाइंट शालू कनौजिया था, उसकी हाइट 4 of 8 थी यानी 140 सेंटीमीटर थी, और उसका वेट 42 केजी था, और उसकी एज 20 थी, और वो सेडेंटरी वर्कर थी. एंड मैम शी इज फूड टाइप इज वेजिटेरियन, और उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी. बट मैम जब मैंने उसका IBW कैलकुलेट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसका IBW 30 केजीज आ रहा है, जो कि आई
आई थिंक उसने कुछ इंफॉर्मेशन देने में कुछ गलती की होगी, इसकी वजह से उसका IBW 30 आ रहा है, जो 30 नहीं आना चाहिए। बट उसका जब मैंने BMI कैलकुलेट किया तो BMI उसका 21 पॉइंट आ रहा है, जो कि नॉर्मल कैटेगरी में आता है। और अकॉर्डिंग टू BMI उसकी जो एनर्जी इनटेक है डेली वो 1260 किलो कैलोरीज आ रही है पर डे। उसका प्रोटीन इनटेक जो IBW से कैलकुलेट होता है वो 36 ग्राम आ रहा है, विच इज नॉट सफिशिएंट फॉर हर। एंड उसका फैट 40 ग्राम डेली, और कार्बोहाइड्रेट आ रहा है 189 ग्राम। सो मैम, आई थिंक अगर उसकी इंफॉर्मेशन अगर इसी अकॉर्डिंग अगर सही हुई तो उसका IBW 30 तो नहीं आना चाहिए, लेकिन नॉर्मल बॉडी वेट अगर 42 है तो उसके लिए वो सफिशियंट है। सो मैम, अकॉर्डिंग टू हिज हिस्ट्री एंड अकॉर्डिंग जैसे उसने बताया मुझे जो कुछ भी वो लेती है डेली, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने उसका डाइट प्लान बनाया है वो कुछ इस तरह बनाया है। जैसे अर्ली अर्ली मॉर्निंग एट 7 AM उसको मैंने ल्यूक वार्म वाटर सजेस्ट किया है। जैसे मतलब नॉर्मली अगर सुबह उठ के अगर गर्म पानी पीते तो डाइजेशन थोड़ा ठीक ठाक होता है, इसलिए उसको वार्म वाटर मैंने सजेस्ट किया है। आफ्टर वार्म वाटर 15 मिनट्स बाद उसको फ्रूट या फ्रूट जूस मैंने सजेस्ट किया है, बिकॉज उसने जैसे बताया कि वो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करती है, तो उसके अकॉर्डिंग प्री प्री एक्सरसाइज उसको कुछ लेना जरूरी है, तो इसलिए मैंने फ्रूट, अदरवाइज उसको फ्रूट जूस मैंने सजेस्ट किया है। आफ्टर 1.5 hour ऑफ एक्सरसाइज मैंने उसको ब्रेकफास्ट एट 9 AM मैंने सजेस्ट किया है उसको ब्राउन ब्रेड, अदरवाइज पोहा उपमा जो भी डेली इंटेक में लेती है विथ टी, अदरवाइज वो मिल्क टी भी ले सकते हैं या ब्लैक टी भी ले सकते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट मिड मॉर्निंग में मैंने उसको 11 बजे और ड्राई फ्रूट सजेस्ट किए हैं, जो भी मतलब वो लेना चाहिए, जो भी वो अफोर्ड कर सकती है, विच इज गुड इन अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटेशियम and protein and all. After ma'am mid morning lunch at 1:30 to 2 PM मैंने उसको लंच में सजेस्ट किया है चपाती, which is a multigrain chapati, otherwise a normal wheat flour chapati. सब्जी मैंने उसको सजेस्ट किया है जैसे पोटैटो, अदरवाइज मिक्स दाल, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, अदर जो भी घर में बनती है वो सब सब्जी, राइस, दाल एंड सलाद में कुकुम्बर, कैरेट, अनियन, टोमेटो एक्सेट्रा। Otherwise, she can have a roasted papad and other things also. ओके। मैम स्नैक्स टाइम में मैंने 5:30 to 6:30 के बीच में मैंने उसको स्प्राउट, बॉइल्ड चना, सोया चंक्स, कटलेट, फ्रूट्स और फ्रूट जूस मैंने उसको सजेस्ट किया है 1 ग्लास। एंड जो भी स्प्राउट्स वगैरह वो ले रही है वो 1 सर्विंग में ले सकती है। मैम ओके। एट डिनर टाइम 8 PM to 9 PM मैंने उसको सजेस्ट किया है चपाती, विच इज 2 चपाती, सब्जी विच इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स, राइस, दाल, सलाद एंड कर्ड, लो फैट कर्ड मैम, बिकॉज वो जो भी डाइजेशन में हेल्प करती है। ओके। इफ शी अगर उसको माइग्रेन वगैरह ना हो या फिर सॉरी सॉरी माइग्रेन भी ना, अगर उसको कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो कर्ड ले सकती है, जिस वजह से उसको कफ वगैरह अगर नहीं जमता हो रात में तो शी कैन हैव कप कर्ड। अगर उसको जमता हो कफ तो वो कर्ड मतलब अवॉइड कर सकती है लेना। मैम बेड टाइम में मैंने उसको हल्दी और सिनेमन पाउडर का मिल्क, बॉइल्ड मिल्क उसको सजेस्ट किया विदाउट शुगर में, विच इज गुड फॉर इम्यूनिटी। दैट्स ऑल मैम। एंड मैम ओके। उसको डेली में मैंने मॉर्निंग में एक्सरसाइज सजेस्ट की है, नॉर्मली कार्डियो वगैरह, रनिंग एंड नॉर्मल योगा एंड मेडिटेशन। एंड एट इवनिंग उसको मैंने बिफोर लंच 45 मिनट्स का एक वॉक सजेस्ट किया है। ओके। द नेक्स्ट सी कौन है बेटा? CPEGUK। दीक्षा। दीक्षा। दिव्या। मेरी वॉइस आ रही है बेटा? हेलो। 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 दीक्षा।
मैम वो क्लास में नहीं है। ओके नेक्स्ट दीक्षा, दिव्या, दिव्या, पायल। यस मैम। ओके आप स्टार्ट करो अपना। यस मैम। मैम patient name is Azmeen Sheikh, age 21, height 154 centimeter and weight 40 kg. According to IBW 54 kg. मैम उनका BMI 16.87 kg per meter square है जो अंडरवेट कैटेगरी में आता है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इज 1800 कैलोरीज पर डे। उनका प्रोटीन 54 ग्राम है एंड फैट हमने 60 ग्राम लिया है एंड कार्बोहाइड्रेट इज 261 ग्राम। सो मैम वो नॉन वेज भी है तो वो नॉन वेज इंटेक भी कर सकते हैं और वो दिन में 2 ही मील लेते हैं। सो वो दिन में 5 से 6 मील ले सकते हैं और वो मॉर्निंग में मीन्स वो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं तो हम उनको एक्सरसाइज भी सजेस्ट कर सकते हैं कि वो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें। नॉट ज्यादा स्वेट वाली नहीं बट नॉर्मल सूर्य नमस्कार कर सकती है थोड़े टाइम के लिए या नॉर्मल वॉक ले सकती है, मेडिटेशन कर सकती है जिससे ज्यादा पसीना वगैरह ना बहाए तो ज्यादा टाइम के लिए नहीं। और उनके शेड्यूल के हिसाब से वो मॉर्निंग में 8 बजे उठते हैं तो वो टी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में पराठा, सैंडविच, स्प्राउट्स ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग में वो कुछ नहीं लेते तो वो जूसेस ले सकते हैं क्योंकि उनका वाटर इनटेक लो है। एटलीस्ट उन्हें 8 to 9 ग्लासेस वाटर लेना चाहिए पर वो सिर्फ 5 to 6 ग्लासेस लेते हैं, ज्यादा ले सकते हैं 8 to 9 से भी। लंच में वो रोटी, चावल, सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कोई भी जो वो ले सके एंड सैलेड भी ले सकते हैं। हाई प्रोटीन सैलेड भी वो ले सकते हैं क्योंकि उनका प्रोटीन भी कम है। एंड वो लंच के बाद कुछ नहीं लेते थे तो सो लंच और डिनर के बीच में बहुत गैप हो जाता है तो वो स्नैक्स ले सकते हैं जैसे मूंग चाट, दाल डम्पलिंग्स, प्रोटीन सैलेड और इवनिंग में भी कुछ ले सकते हैं जैसे जूसेस वगैरह। और बेड टाइम में वो मिल्क लेते हैं तो प्लेन मिल्क लेते हैं तो उसके साथ वो प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, एलमंड्स ले सकते हैं या फिर बनाना ले सकते हैं या फिर हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं। एंड वो बटर घी भी ले सकते हैं ज्यादा क्योंकि उनका अंडरवेट कैटेगरी में आते हैं। पनीर, घी, बटर, उनको डेयरी प्रोडक्ट्स भी ज्यादा लेने चाहिए जो वो कम लेते हैं। सिर्फ मिल्क लेते हैं तो वो पनीर, घी भी ले सकते हैं। और हाई फैट डाइट भी वो ले सकते हैं। उनका डेली इंटेक ज्यादा, वाटर का डेली इंटेक कम है तो वो भी उनको ज्यादा करना चाहिए। एंड मील्स भी वो ज्यादा ले सकते हैं, एटलीस्ट 5 to 6 वो 2 ही मील लेते हैं। और उनका मील टाइमिंग भी रेगुलर है सो जितना हो सके रेगुलर टाइमिंग पे मील लेना चाहिए उनको। डन मैम। ओके पूनम, पूनम, आरती कोराम आपने किया था क्या पहले डायग्नोस? सॉरी मैम। बेटा आप क्लास थे हेलो। प्रीवियस क्लास में? नो मैम, मैं क्लास में नहीं थी। क्यों पूनम आप कल क्यों दे रहे हो बेटा? कल संडे है। रागिनी यस मैम। अब स्टार्ट करो। हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ बेटा आ रही है। ओके, गुड आफ्टरनून मैम। सो जो मेरे क्लाइंट है उनका नेम है निकिता वानगर, जो कि सेक्स है फीमेल एंड उनकी एज है 21 ईयर एंड उनका हाइट है 5.3 फीट। सो उनका सेंटीमीटर में आता है 161 सेंटीमीटर। उनका वेट है 42। अकॉर्डिंग टू ब्रोकास इंडेक्स उनका IBW आता है 61 kg एंड उनका BMI आता है 16.21 kg per meter square. So she is comes into underweight category
एंड उनका जो एनर्जी आता है वो 13,044 किलो कैलोरीज पर डे आता है, जो कैलकुलेट किया है। एंड उनका जो प्रोटीन है, कैलकुलेशंस के हिसाब से उनको प्रोटीन 79.3 ग्राम पर डे दिया है, एंड फैट दिया है 55 ग्राम, क्योंकि वो अंडरवेट है। एंड उनका कार्बोहाइड्रेट देना है 380 ग्राम पर डे। एंड जो कि हमने डायग्नोस किया है, शी इज वीगन। सो उनका मील प्लान जैसे हमने बनाया है, तो अर्ली मॉर्निंग में उनको सोक आलमंड प्लस वाटर दिया है। एंड ब्रेकफास्ट में जो कि आलू पराठा वगैरह, मेथी पराठा, फ्रूट सैलेड्स वगैरह, मतलब पालक पराठा, स्प्राउट्स वगैरह, एंड मिल्क प्लस ड्राई डेट्स वगैरह दिया है। एंड लंच में राइस, रोटी, सब्जी, जो कि वो मतलब ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह लेती है, तो मिक्स वेज, सोयाबीन एक्सेट्रा। एंड सैलेड्स दिया है, सैलेड में बीटरूट, अनियन, टोमेटो। स्नैक्स में उनको दिया है मिक्स फ्रूट्स, एंड मिक्स फ्रूट्स में बनाना, मैंगोज एंड ऑल। एंड डिनर में राइस, चपाती, फुल्का वगैरह, दाल, बॉटल गार्ड सब्जी वगैरह, सैलेड्स प्लस रायता। एंड अगर वो मतलब उसके अलावा वेज ब्राउन राइस, बिरयानी ले सकते हैं, मतलब दिया है उनको, सजेस्ट किया है। एंड बेड टाइम में टर्मरिक मिल्क। That's this is my diagnosing meal plan. एंड उनके जो अवॉइडिंग एंड इंक्लूडिंग फूड्स है, वो है मतलब होल ग्रेन्स एंड सीरियल्स वगैरह, ऑल पल्सेस एंड लेग्यूम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब इंक्लूड्स में आता है। ऑल फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, सोयाबीन्स ऑयल एंड ऑलिव ऑयल जो लेते हैं उनको दिया है। एंड अवॉइडेड फूड्स है रिफाइंड व्हीट फ्लावर, वाइट राइस एंड ब्रेड, table sugar, table salt, frozen foods, and fried foods, and etc. That's all. ओके, तमन्ना। यस मैम। मैम मैं ऑडिबल हूँ? यस बेटा, यू कैन स्टार्ट। मेरी जो क्लाइंट थी उनका नाम है राशिका पोरकर। उनकी हाइट थी 5.3 इंचेस और एज 19 और वेट था 45 केजी। तो इनका पूरा IBW BMI निकालने के बाद आया है 17.57, जो कि अंडरवेट की कैटेगरी में आता है। इनका कुछ ऐसा डिसीज से सफर नहीं कर रहे थे, इनका बस ये असेसमेंट में हमको ये पता चला है कि वो अंडरवेट है। तो इससे हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि इनको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। इनका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, फ्रेजाइल बोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, एनीमिया, और इनकी बोवल मूवमेंट इरेगुलर है। तो इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए कॉज ये हो सकता है कि वो सिर्फ दिन में 3 मील लेती हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है उनके न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने को। और उनको ऐसे कुछ सिम्टम्स तो नहीं दिखते हैं, पर आगे चल के इनको लो एनर्जी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनके न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन के लिए इनका जो न्यूट्रिशन बिहेवियर है, मैं इनका और लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए मैं कुछ इनकी स्ट्रैटेजी जो देना चाहूंगी वो है ये है कि इनको स्लोली अपने मील्स को बढ़ाने पड़ेंगे, 2 आवर्स के इंटरवल में खाने पड़ेंगे थोड़े छोटे छोटे मील्स। और इनको अपना जो वाटर इनटेक है वो इंटैक्ट रखना पड़ेगा, जैसे वो अभी है 8 to 10 ग्लासेस। और खाने से पहले पानी ना पिए, ये मैं उनको बताना चाहूंगी। और एक प्रॉपर रूटीन बनाए जिसमें इनका स्लीप टाइम और वेकअप टाइम रेगुलर रहेगा। और इनका मेन फोकस मेरा इनका विटामिन और मिनरल इनटेक, प्रोटीन इनटेक और डेयरी इंक्लूड करने में रहेगा, और साथ साथ फाइबर इनटेक भी बढ़ाने में रहेगा, क्योंकि इनका बोवल मूवमेंट इरेगुलर था। और इनको मैं वेट ट्रेनिंग की सजेशन देना चाहूंगी ताकि उनका मसल मास इंक्रीज होए। और इनके डाइट में मैं इनको बताना चाहूंगी कि अर्ली मॉर्निंग में ये डेट्स और सोक्ड रेजिन्स ले सकती हैं, क्योंकि मे बी पॉसिबल इनको एनीमिया की प्रॉब्लम आ सकती है आगे। ब्रेकफास्ट में सैंडविच ऐड कर सकती, पनीर पराठा और बेसन का चीला।
मिड मील में ये बनाना शेक या चिकपी सैलेड ऐड कर सकती हैं अपने डाइट में। और लंच में पोटैटो करी, चिकन, एग, क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बटर मिल्क, सैलेड और नॉर्मल चपाती, दाल एंड राइस ये कंटिन्यू रख सकती हैं अपना। और मैं इनके मील में इवनिंग में फ्रूट जूस, सूप या पॉरेज ऐड करना चाहूंगी ताकि उनको उनके मील बढ़ते जाएं। और डिनर में मैं इनके मल्टीग्रेन चपाती, ग्रीन वेजिटेबल्स और मिक्स दाल ये ऐड करना चाहूंगी। और बेड टाइम में इनको मैं मिल्क लेने की सजेशन दूंगी ताकि इनका जो प्रोटीन इंटेक है वो और फाइबर इंटेक है वो सही रहे। ओके, तमन्ना। यस मैम। ओके, हु इज शी? कोमल। कोमल। हेलो। आरती को आप बेटा पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो क्या? नो मैम, अभी कुछ दिन थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं आ पाई। लेकिन जो आप डायग्नोसिस का बोल रहे हैं मैं मंडे को देख सकती हूँ या फिर अभी, आप जैसा बोलो। ओके। आरती। हाँ मैम। ओके, तो तुम आरती के साथ अपना डाटा कलेक्ट करोगे? आरती कौन सी आरती मैम? शी इज नॉट हियर। ओके। पायल। मैम इवन या पायल का रही थी। पायल। यस मैम। ओके, आप पायल का डाटा कलेक्ट करोगे आरती को? ओके मैम। ओके, तो स्टार्ट करो। हेलो। हेलो आरती। मैम आरती का माइक ऑफ है। सॉरी। हेलो पायल, एम आई ऑडिबल? यस। ओके। आपका एज? 20 years, ओके। हाइट? 5.3 inch, ओके, 5'3", which means 160 centimeters. Weight? 47 kg, 47 kg. Okay. Your bowel movement? is regular, Irregular or regular? regular. Regular. Okay. Any medical history? नो, बट मैं रिसेंटली डेंटल का ये कर रही हूँ क्योंकि मेरे टीथ के और जो नाक में में जो बोन होती है वहाँ पे जो टीथ को जॉइन करती है वहाँ पे थोड़ी गैप है, तो मैं ट्रीटमेंट ले Okay. रही हूँ दांत का। Okay. और कुछ? आपका HB% कुछ पता है आपको? हीमोग्लोबिन हाँ। आई थिंक 12 पॉइंट समथिंग कुछ है मेरा। ओके। बाकी कोई प्रॉब्लम? नहीं। योर ईटिंग हैबिट? इट्स रेगुलर, टाइमिंग पे मैं मील लेती हूँ। ओके। आई मॉर्निंग मीन तुम कितना मील लेती हो दिन में? 4 meals, 4 to 2 5। meals, 3 meals, 4 meals, okay, 4 to 5। क्या तुम फ्रूट्स वगैरह ऐड करते हो अपने मील में? हाँ, मैंगो वाटरमेलन्स मैं डेली लेती हूँ। ओके। और नट? नहीं, वो मॉर्निंग में लेती हूँ सिर्फ। योर ओके। योर प्रेफरेंस टी और कॉफी और मिल्क? टी, ब्लैक टी। ब्लैक टी। ओके, थैंक यू मैम। इसका अभी बताना है या फिर बाद में, लाइक मंडे? क्या कुछ क्वेश्चन किए? अच्छे से क्वेश्चंस करो ना उनको। सॉरी? क्या क्वेश्चंस किए आपने उनको? उनका हिस्ट्री लिया है। क्या क्या क्वेश्चन किए आपने उनको? मैंने उनका हाइट वेट लिया, उनका बॉवल मूवमेंट पूछा और फिर वो कितना मील लेते हैं, वो मील में फ्रूट
और पूछा नट्स लेते हैं या नहीं। हाँ पूछा उनको कोई डिसीज है क्या? हाँ पूछा मैम, उन्हें कोई डिसीज नहीं है, उन्हें बस डेंटल का वो कुछ ट्रीटमेंट ले रही है, गैप ओके। है वो नाक के पास। तो और बाकी कुछ उनको डिसीज नहीं है, डायग्नोसिस कोई शुरू नहीं है। बस उनका एज भी ठीक ही है, और उनका बस जो वेट है 47 है, शी इज अंडर वेट। ठीक है, आप डायग्नोस ब्रोकाज मंडे को इंडेक्स बताओ। के हिसाब से उनका आइडियल वेट 60 केजी चाहिए। आप डायग्नोस मुझे एक मंडे बताओगे आरती? हाँ चलेगा मैम। ओके। बाकी रिमेनिंग का सबका जो आज कनेक्टेड है उनका हो गया सबका डायग्नोसिस और इंटरवेंशन बता दिया है। यस मैम। कोमल, कोमल भी आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन दिख रही है मुझे। ओके। आयशा, ऐश्वर्या, पायल और पूनम, रागिनी, तमन्ना, आप सभी का अच्छा था बेटा डायग्नोस। आपने काफी अच्छे तरीके से पॉइंट्स को, हर एक पॉइंट्स को ध्यान में रखा। थैंक यू मैम। ओके। सो नेक्स्ट टाइम भी अगर आपको कभी कहीं कुछ किसी को असेस करना रहा, किसी को या कुछ करना रहा, तो आप लोग ये अपने एक्सपीरियंस को काम कर सकते हो, कि आपको आगे जाके काम आ सकता है। और कभी भी आपको ऐसे काउंसलिंग के इसमें जाना है फील्ड में, तो पहले आपको एज असिस्टेंट में आपको किसी के हाथ के अंदर में काम करना जरूरी है, ताकि आपको एक्सपीरियंस आए हर एक पेशेंट्स का, हर एक अलग अलग क्रिटिकल केसेस का आपको एक्सपीरियंस रहने को होना, तभी जाके आप अपना आगे में जाके बहुत अच्छा दे पाओगे। ओके गर्ल्स, देन हम मंडे के क्लास में रिमेनिंग जो लड़कियां गर्ल्स का रहेगा उनका डायग्नोसिस देखेंगे, एंड ट्यूसडे से हम मॉड्यूल नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। ओके, देन नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक मॉड्यूल नंबर 3 का स्टार्ट करेंगे अब। ओके, ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। Good luck.